इंडिया एक्सपो शॉप 2025 का शानदार शुभारंभ आज यशोभूमि द्वारका में हुआ। इवेंट फुल भारत के साथ MICI इंडस्ट्री ने नवाचार और प्रतिभा का किया प्रदर्शन। इंडियन एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट सर्विस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडिया एक्सपो शॉप 2025 का 5वां संस्करण आज यशोभूमि द्वारका में शुरू हुआ और 12 और 13 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के शीर्ष इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, नीति निर्माता और वैश्विक उद्योग जगत के नेता एक साथ आए। 100 से अधिक प्रदर्शन, 300 से अधिक निर्णय निर्माता और 2000 से अधिक पेशेवर मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेक्टर में नवाचार, स्थिरता और भविष्य के अवसरों पर चर्चा के लिए आज एकत्रित हुए। भव्य उद्घाटन प्रदर्शकों और आगंतुकों के आगमन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद इवेंटफुल भारत का आधिकारिक शुभारंभ हुआ, जो इवेंट एसोसिएशन के उभरते और छोटे खिलाड़ियों को मंच देने के लिए बनाया गया एक अनूठा प्लेटफॉर्म है। उद्घाटन समारोह में IAS की महासचिव सुश्री उषा मेनन, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र वशिष्ठ के साथ इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज धवन, किनेक ICC यशोभूमि ऑपरेटिंग कंपनी के CEO फिल चुंग, इंडिया की प्रबंधक निदेशक और चेयरपर्सन सोनिया प्रसार, इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल एसोसिएशन के संस्थापक आशीष जैन, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष सागर पिंगली और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल की CEO पूजा अरोड़ा ने मंच पर मिलकर इसका अनावरण किया। इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री के अध्यक्ष सूरज धवन ने कहा कि भारतीय प्रदर्शनी उद्योग अभूतपूर्व विकास के कगार पर है, जिसके राजस्व में अगले 3 वर्षों में दुगना होने का अनुमान है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमारी आपूर्ति श्रृंखला को गति और नवाचार के साथ आगे बढ़ाना होगा। इंडिया एक्सपो शॉप 2025 शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं से जुड़ने और शानदार संसाधनों की खोज करने और हमारे उद्योग के भविष्य को आकार देने का एक शानदार मंच है।
चीज़ है। It's close to your heart, but it should be close to everybody's heart. And I think ISA is doing a great job in skilling, but IEA also. What we need to create is standards. We need to create policies. We need to create occupational health, safety. We need to create, sustainable materials. We need to create, work ethics. We need to create a lot of, and I'm sure the industry is getting towards this particular effort. All now profitable business, and I'm sure we all have to contribute to CSR. If we can somehow get to divert our CSR funding, if that's possible, to this center of excellence. So start I Pledge initiative. I Pledge, and if the industry can pledge this contribution to creating the center of excellence, I think that's our contribution to this exhibition industry, for which we stand and for which we exist. Fraternity, I welcome you all to a brilliant show which has been conceived in less than 6 months' time. Personally, I feel that how we talk about the growth of industry, the industry is growing, galloping at a very mind-boggling pace. Talking about statistics, talking about the entire mice industry being $870 billion, becoming $1.5 billion by 2030, and India moving from less than 5% kilogram carbon dioxide equivalent they generate through the event and each and every person's travel, and how much kilogram of carbon dioxide you generate out of making all those buses. This is ESG perspective. And we were discussing with Duma how to develop such SOPs. I think there is a need to develop a standard operating procedures before exhibiting or before organizing any kind of such events. Therefore, we can ask the exhibitors to follow these kind of procedures before you put up your products, put up your stalls. And after the completion of event, the waste or the whatever you left in this event can be managed scientifically and in an environment. For this particular event, I just received a mail from Uma, and I didn't even look at the mail. I said yes.
because whatever you say, she's not going to listen, and it has to be a yes. Having said that, as I walked in the morning, it's a matter of great pleasure to see all the leaders in the industry from different parts of the ecosystem here. And as EMA, we have been making our own efforts in trying to bring together the ecosystem. We have been working together, all of us working together with all of you for the industry. And the industry is growing because of, and we are able to do all the international service. Whatever has happened in India successfully over the years. So it happened in Hyderabad, Delhi, Bombay, all the events we could manage with our own resources. There is no need to bring any expertise from outside. To that extent, we have become self-sufficient in our business. And that's all because of you, your encouragement over the years. He just gave me one black lot. As an association, as a person, his commitment to the work, to the industry, I'm so grateful to all the love I'm getting, even if as a bully. And like every prudent person, I bought my insurance for the next year. So that is why I'm happy to invest in. Chalo. देखिए, आज क्या है कि किसी के पास भी 2000 रुपये का अगर चैट जीपीटी प्रो है तो वो मुझे सोरा में जाके एक सेट डिज़ाइन दे सकता है, लेकिन उसे यशोभूमि नहीं पता। सोरा गारंटी नहीं लेगा कि 1 लाख आदमी यहाँ घुसेगा, उसके ऊपर स्कैफोल्डिंग गिरेगा कि नहीं। सोरा ये गारंटी नहीं लेगा कि आग लगेगी नहीं। सोरा ये गारंटी नहीं लेगा कि जो कूड़ा बन रहा है उसका मैनेजमेंट होगा, वो बाहर एक ढेर नहीं होगा। सोरा आपको बहुत सुंदर लग सकता है क्योंकि उसका काम ही वो है, लेकिन राजमा चावल मैं आपको जितने मर्जी खूबसूरत दिखा दूँ, आपको अपनी माँ के हाथ ही अच्छे लगते हैं। आप उसी वेन्यू में, उसी इवेंट में जाएंगे जहाँ आपको डर नहीं है कि आपकी छत पे स्कैफोल्डिंग गिरेगी। सोरा वो एनालिसिस नहीं कर सकती। एआई आपको डिज़ाइन दे सकता है, एआई उस डिज़ाइन के अंदर एनिमेटेड आदमी चला सकता है, पर क्या आप उस एनिमेटेड आदमी की जगह खुद को रखेंगे? वहाँ हम लोग आते हैं। एआई को चलाना हमारा काम है, एआई हमें नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर इन एन इवेंट वी आर डीलिंग विद लाइव्स एंड दैट ओनली ह्यूमन टच, ह्यूमन एनालिसिस, ह्यूमन साइंस, साइंटिफिक स्टडी। हमें पता है ये ज़मीन कितनी उठा सकती है, ये कितना लोड उठाएगी, हमें पता है ये सीलिंग कितना लोड उठाएगा, हमें पता है बाहर जितनी मर्जी बारिश हो जाए यशोभूमि के अंदर आपको पानी नहीं मिलेगा। ये सोरा नहीं बता सकता, चाहे मैं उसे सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स भी दे दूँ तो भी वो नहीं बता सकता। सारे भारत से आए हुए हैं, कितने आए हुए हैं, कितने आएंगे, हमने बुलाया है तकरीबन 5000 लोगों को। कब कौन कितनी देर के लिए आएगा ये सब के अपने अपने व्यवहार पे है, अपने टाइम पे है, और अब बाहर की बारिश पे है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि यहाँ से जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। बहुत कुछ है यहाँ अंदर, ज़रूरत की हर चीज़ लगी हुई है, हर तरह की। इतनी बड़ी फुलवारी है कि हर तरह के फूल खिले हुए हैं। आपको क्या लेना है ये आपके ऊपर रहेगा। पहली बात जो आपने पूछी। दूसरा कि इसमें कौन कौन आएगा, इसमें हर वो बंदा आएगा जिसको कुछ सीखना है, जिसको इम्प्रूव करना है, जिसको अपनी लाइन में कुछ और अट्रैक्शन लानी है, वो सब आएगा। सब कुछ हम एक दूसरे से सीखते हैं। फिर जो बातें हम करेंगे तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कुछ मैंने सीखा है,
थोड़ी देर पहले हमारा सेशन चल रहा था क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे अभी आपके हाथ से माइक गिर गया, ये क्राइसिस नहीं है लेकिन संभालना तो पड़ेगा। वहाँ पे कोई बोल रहा है आवाज़ बंद हो गई, अब किस रीजन से बंद हुई मतलब नहीं है उनको तो हो गया कि आवाज़ बंद हो गई। अब कई लोगों को वो स्विच ऑन करना ही नहीं आता है, तो उनको थोड़ा सिखाना भी पड़ता है, बताना पड़ता है कि साहब ये ज़रा ऑन कर लीजिए। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस हैं। नए बच्चे हैं जो हमको देख के सीखना चाह रहे हैं कि हमको ग्रो करना है, हमको ऐसा बनना है। ऐसा बनने के लिए उसको 3 चीज़ें चाहिए, पहले तो पैशन, फिर डेडिकेशन, फिर एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस अपना ही होता है, कितना भी मैं सिखा दूंगा, उनको समझा लूँगा भी ऐसे नहीं ऐसा होता है, लेकिन उसके साथ उस सिचुएशन में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम है, उस वक्त उसको क्या होना है नहीं है। कई बार वो माइक पकड़ के ही सामने आया बंदा और खुद ही गिर जाता है, स्टेप के ऊपर से कुछ लग जाता है, आप क्या कर लोगे इसको? इसको सिचुएशन संभालना बोलते हैं। एवरेज देखा जाए तो कितना रोजगार कितना दे रहा है ये क्योंकि एक गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर बन जाता है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या देखते हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट बहुत बाद में आती है। एक रोजगार का साधन जो देखो साधन सारे उनके पास हैं, इसलिए पैसा तो वहीं से ही आएगा। लेकिन आपके घर में जो फंक्शन है वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। पहले तो आपसे शुरू हुआ, फिर आप 10 लोग बना के एक एसोसिएशन बनाते हो तो एसोसिएशन के लिए काम कर रहा है। पेपर एजुकेशन अपना एसोसिएशन है, टूल्स एसोसिएशन है, कंप्यूटर एसोसिएशन है, डॉक्टर एसोसिएशन है, सबको कुछ ना कुछ होना है और सबका आइडिया अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, कोई भी सोसाइटी के लिए कितना भी करे, सोसाइटी को भी पैसे चाहिए, नहीं तो सोसाइटी नहीं चलेगी। तो फाइनेंशियल इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्ट कटिंग इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ से शुरू होती है इनोवेशन, कि सामने वाले को कम पैसे में क्या बढ़िया चीज़ दे सकते हैं, कितनी देर में दे सकते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेन्यू वाला एक दिन का एक्स्ट्रा किराया ले लेगा तो उसकी नहीं आती, तो आधी रात में काम करना पड़ता है। अब आधी रात में आप कितनी भी लेबर ला लो, काम तो काम है, तो वहाँ पे नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज के साथ काम, काम के साथ एक्सपर्टीज़, स्पीड, पहले क्या आना है बाद में क्या आना है, ये सब सीखना पड़ेगा। आप ना इसमें AI को कुछ बता सकते हैं ना कुछ है। तो आइडिया क्या है कि सामने वाले को, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक जगह प्रोग्राम है, सेटिंग हुई है, अचानक बारिश का मौसम बन गया, अब उसको वाटर प्रूफिंग करनी है और इतनी जल्दी हो नहीं सकती, तो क्या करना है? मैनेजमेंट है। अब ये क्राइसिस मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट है? ये क्राइसिस मैनेजमेंट है। तो हम क्या बोलते हैं, आप नीचे से काम करो, उनको सेटअप करके दे देते हैं, अब आप अपना काम करते चलो, जिसको जो काम करना है करेगा, ऊपर की छत हम डालते रहते हैं। तो बाय द टाइम रिक्वायर्स और उसको जो होना है वो सब सेट हो जाता है, काम हो जाता है। तो तब होता है जब आपको उसकी नॉलेज है, आपके पास टूल्स हैं, आपको मालूम है किससे करवा सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ी नॉलेज है। किससे काम कराना, ये बहुत बड़ी नॉलेज है। काम सबका एक ही है, लेकिन काम अगेन साझेदारी का होता है। कभी कभी क्या होता है कि शो बहुत बड़ा होता है। अब जैसे आप ऑटो एक्सपो देखिए, या बैंगलोर में एक शो होता है एक्सकॉन, जो कि करीब 1.25 लाख मीटर बड़ा शो है। 1.25 लाख मीटर में वो शो होता है। वो एक आदमी के बस की नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। कंपटीशन एक शब्द है, ठीक है, टेंडर्स में सब सामने बैठे हैं, एक के बढ़िया एक डिज़ाइनर को देंगे, सब देंगे, लेकिन जब तक कोलैबोरेशन नहीं है इंडस्ट्री में, मेगा इवेंट्स नहीं हो सकते, और जब तक मेगा इवेंट्स नहीं होंगे तब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकती। जब बड़े वेन्यूज़ बनते हैं तो वो बड़े वेन्यूज़ मेगा इवेंट्स के लिए बनते हैं। उन मेगा इवेंट्स में कोलैबोरेशन, सबको साथ काम करना, हर किसी का। अब जैसे G20 को मैं वापस एक मुद्दा उठाती हूँ, वो एक वेंडर ने नहीं किया था, MEA ने भी 3 वेंडर्स को दिया था, उन 3 वेंडर्स ने 300 वेंडर्स को आगे करा था। इट इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस। बिना कोलैबोरेशन के ग्रोथ नहीं है। तो ऐसा हो, IAIA हो या कोई भी हो, हम लोग कभी भी बिना कोलैबोरेशन, जब तक एक टेंट में 4 पिलर नहीं होंगे सर, कैसे खड़ा होगा? सो दोस 4 पिलर हमारे कोलैबोरेशंस है। तो कंपटीशन है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन है। तो हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं इसको? इवेंट्स को कितने पार्ट में बांट सकते हैं? फैशन इवेंट और तुम्हारा शादी का चले जाए वो। सर आपकी ज़िंदगी में अभी तक कितने इवेंट्स हो गए? हम तो देखते रहते हैं।
आपके अपने कितने हो गए? मेरे अपने आप क्या होंगे? क्यों? पैदा होने से, जिस दिन आप पैदा हुए, नामकरण से लेके, भारत तो देश इवेंट्स का है, तभी तो हम कहते हैं इवेंटफुल भारत। मैं आपसे ये पूछना था कितने पार्ट में बांट सकते हो उसको? आप सोच भी नहीं सकते, और रोज नए इवेंट्स आ रहे हैं। अब कल हमारा एक सेशन है जो ईमा वाले कर रहे हैं, जो म्यूजिकल शोज में है। म्यूजिकल शोज का एक हिस्सा म्यूजिकल लाइसेंसिंग है, म्यूजिकल रॉयल्टीज है। आप सोच भी नहीं सकते आज इवेंट्स कहाँ पे है। एक हमारा सेगमेंट है ऑन स्पेशलिटी शोज। आज की डेट में छोटे छोटे जैसे सेक्टर स्किल्स हैं, प्लम्बिंग एसोसिएशन है, लेदर एसोसिएशन है, टेक्सटाइल एसोसिएशन है, इनके अपने मेगा शोज होते हैं। तो कितने जो, तो जहाँ तक आपकी सोच है वहाँ तक शो है, जहाँ तक सोच वहाँ तक शो। I am Matthew from Tamil Nadu chapter. I am Vice President of Tamil Nadu chapter. This about this ESA. We are very happy to part of Delhi Expo 2025 here. This we are very glad to part of this eventful organization. This is actually this is the way the organize the event is very fabulous. We are very happy to just part of this partnerships. Thank you so much. Mr. Solomon, you want to something? Yeah, I'm Solomon from Chennai, and I'm in this event field for about 36 years, from 1989 I'm in this field, and I'm very happy to be part of ESA, and the way they do all sort of exhibition, the developments we receive from them is enormous. We are able to meet people from Bombay, we are able to meet from people from Delhi, and we are glad to meet all the people here. Thank you.